Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all CHS members. Website has very simple language articles, various draft of applications, over 125 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical, non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is internal auditor, appointment procedures and duties. Internal auditor. Presently, there is no mandatory provision under the MCS Act, Maharashtra Cooperative Societies Act, rules to appoint internal auditor. However, big societies may appoint internal auditor under the provisions of Section 72. 72 वो सेक्शन है जहाँ पे जनरल बॉडी का अथॉरिटी डिसीजन इज फाइनल सुप्रीम read with section 154B1 bracket 19 wherein it is written कि a person may be appointed by a society to any office by जो भी नाम से हो. It may be joint secretary, joint treasurer, joint vice president, or anybody by whatever name called. So this means that you can appoint a person, general body can appoint a person under this act. Appointment of internal auditor becomes more important, relevant and necessary since typically elected managing committee members throw various type of tantrums, कहते हैं कि I do not have time. हकीकत में होता है टाइम नहीं होता है. They cannot do their responsibilities because lack of knowledge है. कामकाज कैसे करना है नहीं पता है. सारे कानून थोड़े ना पता होता है सबको. सारी ड्यूटीज सबको थोड़ी ना पता है. सब काम करने के लिए हर किसी के पास में हर समय नहीं होता है. कब क्या कैसे करना है वो सारी चीजें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. Hence, observation report of internal auditor becomes useful in compliances of all deficiencies and reduce conflicts in society. इंटरनल ऑडिटर का जो रिपोर्ट है वो हर किसी को देना है, जनरल बॉडी को भी देना है एजीएम के टाइम पे, बिकॉज इंटरनल ऑडिटर को भी एक एजेंडा नोटिस एजेंडा के मार्फत से उसे अप्रूव करना है, उस पर चर्चा होनी है, फिर अप्रूव होना है. बिकॉज इंटरनल ऑडिटर का जो फीस वगैरह है वो जनरल बॉडी के पैसे से ही जाता है. Who can be an internal auditor? Internal auditor can be amongst the volunteering GB members, general body members. मतलब जनरल बॉडी में से सोसाइटी में समझो 500 मेंबर है, उसमें से अगर कोई एक दो जन बोलता है कि ठीक है मैं सोसाइटी के हित के लिए, फायदे के लिए, कार्यवाही के लिए, ओवरऑल
गुड बेनिफिट के लिए मैं इंटरनल ऑडिटर बनने को तैयार हूँ। वो हो सकता है फीस बेस पे हो, बट डेफिनेटली नॉट ए मैनेजिंग कमिटी मेंबर, दैट इज फॉर श्योर. So internal auditor can be anybody from the general body member who might have volunteered, or from an independent chartered accountant firm, or independent chartered accountant, or a lawyer, or a lawyer firm, or an accountant, or an accounting firm even. इंटरनल ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है उसकी फीस टर्म्स क्या होगा, टेन्योर क्या होगा. टेन्योर का मतलब है 1 साल के लिए उसको रखना है कि 2 साल के लिए रखना है, कैसे है? ये एक रेजोल्यूशन से ही डिसाइड कर सकते हैं. एंड दिस रेजोल्यूशन कैन ओनली एंड ओनली बी इन एन एजीएम और एसजीएम एंड नॉट इन एन एमसी मीटिंग. मैनेजिंग कमेटी को अधिकार नहीं है इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्टली अपॉइंट करने के लिए, बिकॉज इट इज ए पॉलिसी डिसीजन. अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज अ पॉलिसी डिसीजन. Policy decision because also you are going to spend money of the society, of the members. Internal auditor के पास में अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्ट अधिकार होते हैं सारे सोसाइटी के रिकॉर्ड्स, रजिस्टर वगैरह वगैरह चेक करने के लिए. इसके लिए उसको अथॉरिटी जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन से ही मिल सकती है, via proper AGM or even in an SGM also, special general body meeting. Internal auditor cannot be kept on salary basis because he is not your employee. He has to be paid fees, let us say professional fees, because he is a professional, and such professional fees becomes a component of service charges. सर्विस चार्जेस में देखिए लीगल चार्जेस करके है, तो दोज आर ऑल क्लासिफाइड एज प्रोफेशनल फीस. सो प्रोफेशनल फीस और लेट अस से लीगल चार्जेस, इवन दो इंटरनल ऑडिटर डज नॉट मीन ए लीगल person, but a legal person also can be appointed as a internal auditor, and whatever fees is being paid to him is called professional fees, and such professional fees becomes a component. It is a part of the service charge payable by all the members equally through their monthly maintenance, service and maintenance bills. Internal auditor typically does not have any working or administrative connection with the panel auditor. He is an independent body. वो पैनल ऑडिटर के नीचे काम नहीं करता है, पैनल ऑडिटर के ऑब्जर्वेशन के ऊपर उसका रोल है. ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस should be factored, and hence internal auditor may be appointed for only 1 financial year. जनरल बॉडी बोलती है कि नहीं, हमको ये आदमी बहुत पसंद है, इसको 5 साल के लिए अपॉइंट करो, पर ऐसा नहीं करना है. इंटरनल ऑडिटर अपना पोजीशन टिपिकली कई जगह मिसयूज करता है. टिपिकली जैसे ऑडिटर कैसे मिसयूज करता है, जैसे कैसे वो अकाउंटेंट मिसयूज करता है, दैट वे. तो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए अपॉइंटमेंट उसका 1 साल के लिए करिए, उसको रिपीट कर दीजिए भले नेक्स्ट जनरल बॉडी में, बट अपॉइंटमेंट विल बी ओनली फॉर 1 ईयर. ये क्यों करना है? क्योंकि अगर वो इंटरनल ऑडिटर को रिमूव कर देना है, डिसमिस कर देना है नॉन परफॉर्मेंस के लिए वगैरह वगैरह, एंड बिकॉज द इंटरनल ऑडिटर resolution was appointed in a general body meeting, the managing committee cannot discontinue or remove the internal auditor, and there should be no misuse of authority by internal auditor. So the conclusion is कि
Internal auditor typically should be appointed only for each financial year. Internal auditor performs is unrestricted function in the background, और let us say उसका काम जो है वो बैक एंड का काम है, बैक एंड वर्क, without involving or interfering of any managing committee member or general body member, which means कि मैनेजिंग कमेटी इंटरनल ऑडिटर के कामकाज में इंटरफियर नहीं कर सकता है, जनरल बॉडी का मेंबर उसके कामकाज में इंटरफियर नहीं कर सकता है. कई जनरल बॉडी मेंबर की फितरत होती है कि नहीं, हम साथ में बैठेंगे, हम गाइड करेंगे उसको, हम पिन पॉइंट करेंगे. वो आप उसको मिसलीड करने का या इन्फ्लुएंस करने का कोशिश में लग जाते हैं, ऐसा प्रतीत होने लगेगा. सो ही हैज टू बी वर्किंग, internal auditor has to be working without any interference of any MC or GB members. MC or GB members should not interfere with internal auditor workings or reportings or give directions or order to internal auditor, since this will mean manipulating or influencing the internal auditor. Who has to work independently and absolutely on neutral conditions. Neutral conditions क्यों? Because of सोसाइटी में, सोसाइटी के हित के लिए कानूनी कंप्लायंस क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसका उल्लेख, उसका वर्णन, उसका डिस्क्रिप्शन करने वाला है अपने रिपोर्ट में. तो आप अभी ये मत कह सकते हो उसको कि मेरा फ्लैट में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हो, उसको मत लिखो, या ये वाउचर में ये सपोर्टिंग नहीं है तो उसको इग्नोर कर दो. ही हैज टू रिपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग. Internal auditor, let us say I'll use the word IA for internal auditor for short. So IA has to be physically present in the society premises to do internal auditing and not take any documents, records to his own office or home or wherever, because all those documents are in a way confidential. It is privy to only the society people. IA duties can be limited to as may be decided by MC via a GB resolution. IA to have unrestricted access to any and all records and registers, accounting paper, common areas of the society without any restrictions. अगर इंटरनल ऑडिटर बोलता है कि मुझे टेरेस में देखना है कि आपने कोई गैर कानूनी सोलर सिस्टम तो नहीं लगा रखा है, आपने कोई गैर कानूनी रूम तो नहीं बना रखा है, आपने कोई गैर कानूनी मोबाइल टावर तो नहीं इंस्टॉल कर रखा है, वो काम उसका इंटरनल ऑडिटर का भी है, and he has to report that in his report for good governance of the society. Internal auditor will have no administrative or governing or enforcing power or authority or any responsibility or any liability, but his duty is to record whatever his findings are on as it is, where it is basis, based on the records and registers put before him. Internal auditor IA does not have any power to make any MC or GB working or functioning policies or monetary policies or security policies or anything else. His duty is only to record
observations in his report, and those observations can be discussed in an MC meeting and then in an GB meeting, and rectification of the same, improvements in the same, corrections in the same can be made. इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि मैनेजिंग कमेटी को बोला जाए कि आपने काम ठीक से नहीं किया हुआ है, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया हुआ. It is only an observation report. Internal auditor can be invited in an AGM or SGM as a special invitee with prior notice agenda. क्यों बुलाना है उसको? To brief or answer the general body members' queries without any liabilities. Internal auditor must have long experience. अभी इतना बड़ा काम करने वाला है वो सोसाइटी का, सोसाइटी की भलाई के लिए, सोसाइटी में क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या अंदेशा है गड़बड़ी का, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या कम हो गया, क्या ज़्यादा हो गया, वो सब चीज़ों के बारे में उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस, अनुभव, तजुर्बा होना चाहिए. So he should be having a long experience of laws applicable to societies, which includes accounting laws, auditing laws, MCS Act के laws, BMC, MRTP, income tax, GST वगैरह वगैरह. इंटरनल ऑडिटर एक कंसाइज समरी रिपोर्ट देता है जो एजीएम के सामने पेश किया जाता है फॉर अप्रूवल और टू सजेस्ट एनी इम्प्रूवमेंट्स. सो जीबी हैज टू कंसिडर द आईए कंसाइज समरी रिपोर्ट, approve it and suggest any improvements. क्योंकि सब मेंबर को ज्ञान नहीं होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये रिपोर्ट हेल्प होता है उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए या जो मिस आउट हो गया उसको लागू करने के लिए. एमसी या सोसाइटी मैनेजर टू टेक नोट ऑफ द आईए रिपोर्ट एंड इम्प्रूव और कंप्लाई एंड इम्प्लीमेंट the suggestions or compliance of various laws that are reported in the IA report. What is the internal auditor को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए उसके इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में. Internal auditor is a special and unrestricted person or let us say body, अगर किसी फर्म को एंगेज किया हुआ है with unrestricted powers, just like SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो सरकार कभी कभी अपॉइंट करती है, वो SIT बाकी हर डिपार्टमेंट के ऊपर इंडिपेंडेंटली न्यूट्रली काम करती है. So he is supposed to be appointed for independent and neutral investigation in any aspect. IA he can do monthly auditing or quarterly auditing or half yearly or yearly audit as may be decided in the terms and conditions formulated for the same, and he has to prepare his report accordingly. But वो रिपोर्ट तो डिटेल होगा, करीबन 30, 40, 50 पेज का हो सकता है, बिकॉज इट कवर्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी वर्किंग इन गवर्नेंस. और जनरल बॉडी के लिए आई हैज टू प्रिपेयर मे बी से 1 or 2 pages कंसाइज समरी. तो पूरा पुस्तक नहीं दे देना, ऐसे का स्टोरी नहीं बना के देना, ताकि वो जनरल बॉडी को समझ में आए कि इसमें क्या है, और अगर फिर उसके ऊपर चर्चा करनी है तो डिटेल्ड रिपोर्ट उस टॉपिक के ऊपर खोल के रीड करके चर्चा कर सकते हैं.
General body members can demand the IA report under section 154B8 on payment of relevant certified copy charges. So फुल ईयर का रिपोर्ट एक से 4 पन्ने में बना के जीबी को पेश करना है फॉर कंसिडरेशन और अवेयरनेस ऑफ द जीबी एंड द एमसी. Internal auditor will review all AMC's annual maintenance contracts, other contracts, agreements कई लोगों के साथ आप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कई लोगों के साथ में होता है. जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपके कुछ मेजर रिपेयर चल रहा है या कोई सिविल काम चल रहा है या आपने अलग अलग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए किसी को, अपॉइंटमेंट्स दिए हुए हैं अलग अलग वेंडर्स को. अलग अलग वेंडर्स का मतलब सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, ऑडिटर है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी वाला है, लिफ्ट ऑपरेटर है, फायर ऑपरेटर है, आर्किटेक्ट्स है, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, लीगल एडवाइजर्स है, और कोई भी हो सकता है. सो एआई हैज टू रिव्यू, चेक करना है, स्क्रूटनाइज करना है ये सारी चीजों को. Internal auditor has also to check membership transfer documents, endorsement entries made in the INJ registers, share certificates, collection membership का ट्रांसफर का फीस प्रीमियम कलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है टाइम पे, एक्सेस तो नहीं ले लिया, वो उसको रिकॉर्ड करना है. बिकॉज ही इज ए न्यूट्रल बॉडी. उसको ये नहीं सोचना है कि नहीं ज़्यादा लिया है तो सोसाइटी के लिए तो अच्छा ही है ना. कानून में जो लिखा है उसके अलावा और अगर कुछ लिया जा रहा है तो वो ना अच्छा है ना बुरा है, उसको वो रिकॉर्ड करना है विदाउट थिंकिंग कि वो अच्छा है या बुरा है. नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस है कि भी लिव इन लाइसेंस के टेनेंट सोसाइटी में रखे हुए हैं क्या, डॉक्यूमेंट्स लिया हुआ है क्या उनके साथ क्या, तो उसको स्क्रूटनाइज करने का अथॉरिटी भी इंटरनल ऑडिटर को है. नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस प्रॉपर लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, और अगर कोई स्पेसिफिक चार्जेस ले रहे हो लिव इन लाइसेंस टेनेंट से, जैसे कई सोसाइटी में शिफ्टिंग चार्जेस लेते हैं वगैरह, तो क्या वैसा वाला एक जनरल बॉडी का प्रायर रेजोल्यूशन अवेलेबल है क्या. Internal auditor will also check the bylaw approvals, amendments according to the latest changes in the MCS Act or rules, implementation and compliance of the bylaws. बायलॉ में जो लिखा हुआ है क्या वो सोसाइटी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन देना उसे. कोर्ट के केसेस कोई चल रहे हैं कि सोसाइटी के विरुद्ध में या कोई मेंबर के विरुद्ध में, उससे सोसाइटी का क्या रूल है, आपने कितना लीगल फीस दिया है, उसका डिडक्शन, टीडीएस का डिडक्शन, जीएसटी का डिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. इंटरनल ऑडिटर का एक बड़ा रोल होता है मेंबर्स के बिलिंग्स का, सोसाइटी के हर मेंबर का बिलिंग्स का. ऑल पेमेंट वाउचर्स, जितने भी आपने वाउचर्स बनाए हैं उसका सपोर्टिंग, उसका रिलेवेंट रेजोल्यूशन, मैनेजिंग कमिटी रेजोल्यूशन या जनरल बॉडी रेजोल्यूशन. बिलिंग्स वाउचर्स के ऊपर आपने टीडीएस जीएसटी द्वारा का प्रोविजन लिया है कि नहीं लिया हुआ है. मैंडेटरी जो रिटर्न्स है टीडीएस का फाइलिंग का, जीएसटी का फाइलिंग का, वो हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी उसे ऑब्जर्व करना है उसके अंदर. कंप्लायंस ऑफ बीएमसी लॉज एंड अदर लोकल लॉज. बीएमसी लॉज में जैसे अगर उसको ऐसा लगता है कि किसी ने कंप्लेंट किया लीकेजेस का, किसी ने कुछ इंक्रोचमेंट का कंप्लेंट किया हुआ है, तो सोसाइटी के रिकॉर्ड में उसको देखना चाहिए कि दरवाजे के बाहर जूता चप्पल का रैक तो नहीं रखा हुआ है, सोसाइटी में और किसी ने कोई कॉमन पैसेज को या यहाँ वहाँ और कुछ एनक्रोचमेंट तो नहीं कर लिया है. तो सारा बीएमसी के लॉस के अंदर में जाता है. एमसीएस एक्ट का कंप्लायंस, सेक्शन 75 रिलेटेड टू एजीएम, सेक्शन 81 related to audit, section 82 relating to audit rectification report, जिसे कॉमनली हम ओ फॉर्म बोलते हैं. ये सारी चीज़ें एमसी ने एजीएम एजेंडा में लिया है या नहीं लिया हुआ है, उस पर चर्चा हुई है या नहीं हुई है,
उसका रेजोल्यूशन रिकॉर्ड किया या नहीं किया हुआ है। अगर जनरल बॉडी के मेंबरों ने मिलके 1/5 मेंबरों ने मिलके कोई रिक्वेजिशन दिया हुआ है स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए अंडर सेक्शन प्रोविजन ऑफ 76, तो वो हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कारण से नहीं हुआ है, उसके बारे में उसको करना है। हमें ये सब क्यों करना है? क्योंकि ये चीज मैनेजिंग कमेटी को प्रभाव करता है, सोसाइटी वर्किंग के लिए अवॉइड करता है कि एडमिनिस्ट्रेटर ना आके बैठ जाए, सरकार सोसाइटी के मेंबर खुद ही अपना कामकाज संभाले। इसके लिए ये सारी चीजें करना जरूरत है। तो इट इज लाइक ए प्रिकॉशनरी मेजर कि पहले से सोच समझ लेते कि ये सारी चीजें करना है। सेक्शन 75 में उसको ये भी देखना है कि भाई एक मैंडेटरी एजेंडाज हैं जो मिनिमम मैंडेटरी एजेंडाज है, जैसे मैनेजिंग कमेटी वर्किंग रिपोर्ट है, ऑडिटर ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट्स, बजट प्रोजेक्शन स्टेट आते वाले साल के लिए बजट प्रोजेक्शन स्टेटमेंट फाइल किया है कि नहीं किया है, बायलॉ के अमेंडमेंट्स का कोई प्रोविजन रखा हुआ है क्या अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एक्ट एंड रूल्स, न्यू मेंबरशिप ट्रांसफर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शामिल है या नहीं है एजीएम के नोटिस एजेंडा में। ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के उसको ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाना है कि ये हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये आपको करना है, ये नहीं बोलना है उसको। जो ऑलरेडी हो चुका है इंटरनल ऑडिट, उस पर ऑडिट करना है। आगे क्या होने वाला है ये उसका काम नहीं है। इज नॉट सपोज टू बी मेकिंग एनी पॉलिसीज फॉर एनी इवेंट जो अभी तक हुआ ही नहीं है। अगर मैनेजिंग कमेटी का कोई नेग्लिजेंस है तो यू हैव टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट कि मैनेजिंग कमेटी ने ये मीटिंग नहीं किया हुआ है, नॉन कंप्लायंसेस किया हुआ है, सोसाइटी को कुछ कुछ चीज़ों पे लॉसेस हुए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कई बार सोसाइटी के ऊपर फाइन और पेनल्टी या इंटरेस्ट भी लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के द्वारा लेट पेमेंट के लिए, बीएमसी का लग जाता है इंक्रोचमेंट के बारे में या पानी के चार्जेस के बारे में, ट्री अथॉरिटी की तरफ से पेनल्टीज लग जाती है, पेस्ट डिपार्टमेंट है, सीवेज डिपार्टमेंट है, पानी का अथॉरिटी है, पंप नहीं चल रहा है, मीटर नहीं चल रहा है, फिर भी यूज करे जा रहे तो पेनल्टी लगती है, इनकम टैक्स का पेनल्टी इंटरेस्ट लगता है, कई बार जीएसटी भी सब लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये मैनेजिंग कमेटी के नेग्लिजेंस और डिफिशियंसीज के कारण होता है, बिकॉज दे डू नॉट कंप्लाई विद ऑल द लॉस। कानून जो नुकसान हुआ है फाइन पेनल्टी इंटरेस्ट वो सोसाइटी के मेंबर को नहीं भरना है, and such amounts have to be recovered from the MC under provision of section 73(1)(ab) of the MCS Act. Internal auditor also has to see कि compliance हुआ है कि नहीं हुआ है, मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग्स टाइम पे लिया हुआ है, टिपिकली जिसे हम कहते हैं 1 MC मीटिंग पर मंथ बेसिस, एजीएम हर साल की एक मिनिमम मीटिंग होनी है, अगर एडजर्न हुआ है तो एडजर्न मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है, एजीएम एडजर्न मीटिंग, एसजीएम मीटिंग हुई है और उसके प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं कि नहीं किए, कोरम हुआ है कि नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स, प्रॉपर फाइलिंग ऑफ द सेम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजीएम और एसजीएम मिनट्स टू मैनेजिंग टू जनरल मेंबर्स, किसी मेंबर ने कुछ अप्लाई किया हुआ है तो क्या उसका कंप्लाई किया हुआ है क्या डॉक्यूमेंट्स देने में वगैरह, वो सारा काम उसका है रिकॉर्ड करने के लिए। आई विल रिपीट अगेन कि इंटरनल ऑडिटर का जो काम है वो छोटी सोसाइटियों में कोई फायदे का नहीं है, और बड़ी सोसाइटी में जहाँ पे 500, 400, 500, 1000, 1200, 1500 मेंबर की सोसाइटी है, बड़े बड़े और भी बड़ी बड़ी सोसाइटी जहाँ पे फेडरेशन लेवल तक की सोसाइटियाँ बन जाती है, तो वहाँ पे ये इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना बहुत बहुत यूजफुल होता है। इट हेल्प्स इन फंक्शनिंग प्रॉपरली। पीरियडिकली रिक्वायर्ड उसका इंटरनल ऑडिटर का एक और काम है टू स्क्रूटिनाइज एंड रिपोर्ट
non-compliances of various periodical required structural audit reports, fire audit, lift audit, STP plant audit, electrical audit, EV audit, टैंकर वाटर सप्लायर्स, पानी आ रहा है, स्टेटमेंट बनाना है, कितना पानी यूज किया, बीएमसी का कितना पानी यूज किया, शॉर्ट पड़ रहा था क्या, मैच होता है नहीं होता है। पेस्ट ऑडिट, पेस्ट ऑडिट का मतलब है वो टर्माइट्स हो गए, वो कॉकरोचेस हो गए, वो चूहे हो गए, और बाकी जो भी कुछ एप्लीकेबल हो सकता है। सिक्योरिटी एजेंसी रजिस्ट्रेशन अंडर द पसारा एक्ट, ये ध्यान, उसको बड़ा सोसाइटी है तो ऑब्वियसली वो चालू सिक्योरिटी एजेंसीज को तो एंगेज नहीं करना चाहिए उनको, बिकॉज देयर इज ए पेनल्टी, देयर इज ए प्रोसिक्यूशन फॉर एंगेजिंग नॉन पसारा रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज। फिर पैन कार्ड, पैन रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों के रिटर्न फाइलिंग, कंप्लायंसेस करना, रिकॉर्ड कीपिंग रखना, वो सब रिकॉर्ड उसको चेक करना है। मैनेजिंग कमेटी टू क्रिएट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो इंटरनल ऑडिटर को ये देखना है कि आपकी इतनी बड़ी सोसाइटी है, आपका हमेशा कुछ ना कुछ खर्चा होता रहता है, तो उस सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक पॉलिसी बनानी है जहाँ पे द सोसाइटी शुड बी मेंटेनिंग एन इम्पैनल्ड वेंडर लिस्ट फॉर एएमसीज। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लिफ्ट है, तो बड़ी सोसाइटी तो ऑब्वियसली कम से कम 15-20 लिफ्ट होगी, एएमसी करना है तो एक ही से करना है क्या, तो क्या हम और किसी को भी कर सकते हैं? ऐसे एक वेंडर की लिस्ट बनाना है कि चाहे 4-5 वेंडर्स फेमस हैं, इनका रैपो अच्छा है मार्केट में, इनका नाम अच्छा है, इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उसकी एक लिस्ट बनानी है। तो हर चीज के लिए एक लिस्ट बनानी है। स्टेशनरी आइटम का भी मेजर रिपेयर्स कर रहे हो, एसी वेंडर है जो एसी खराब हो गई है, सेंट्रलाइज्ड एसी है वगैरह वगैरह, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो ये सारी चीजों के लिए एक एम्पैनल्ड वेंडर लिस्ट बनाना है। प्रेफरेबल खर्चा उन वेंडर लिस्ट में से होगा, क्योंकि अगर 5 लोग हैं तो 5 के कोटेशंस आएंगे, आपको मार्केट में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास ऑलरेडी वेंडर लिस्ट है। पर यह जरूरी नहीं है कि उसी वेंडर लिस्ट में से ही शामिल करो, डिस्क्रिशन मैनेजिंग कमेटी के ऊपर है, डिस्क्रिशन जनरल बॉडी मेंबर्स के ऊपर है। इंटरनल ऑडिटर इज आल्सो टू चेक कन्वेंस ऑफ द सोसाइटी लैंड, any taxes, payments, property taxes, any possibility or parameters relating to redevelopment जरूरी पड़ती है, सोसाइटी पुरानी हो गई है, सेल्फ रीडेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल ऑडिट कंप्लायंसेस, ये सबका ऑब्जर्वेशन उसको देना है। उसको ये नहीं बोलना है कि आपको रीडेवलपमेंट करना है, पर अगर आपने कोई पॉलिसी लिया हुआ है, बनाया हुआ है, डिस्कशन चल रहा है, तो उसका ऑब्जर्वेशन उसको देना है कि आपने कन्वेंस के लिए बात किया तो इतना तो कोरम होना चाहिए था, कन्वेंस के लिए बात किया तो इतना तो बजट होना चाहिए था, कन्वेंस के लिए बात किया तो ये फीस के ऊपर टीडीएस है, जीएसटी है वगैरह, उतना तो सब होना चाहिए था। ये सारी चीजों का खर्चा आपने मेंबर से लिया है या नहीं लिया है, कहाँ से लिया हुआ है, ये उसका ऑब्जर्वेशन उसको रिकॉर्ड करना है। एक और ड्यूटी है कंप्लायंस ऑफ मैनेजिंग कमेटी कोरम, उसको चार्ट बनाना है, कितने मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स है हर महीने का, कितनी मीटिंग्स हुई है, कोरम हुआ है या नहीं हुआ है, कितने रिजर्वेशन आए हुए हैं, रिजाइन कितने किए हुए, कितने वैकेंसीज पैदा हो गए हैं। रेजिग्नेशन से वैकेंसीज होते हैं, आदमी मैनेजिंग कमेटी मेंबर रिजाइन करके सोसाइटी छोड़ के चला जाता है, मर भी जाता है वगैरह वगैरह। तो फिर बाद में कोऑप्शन के प्रोसीजर्स के बारे में सब कमिटीज अगर बनी हुई तो उसके ऑब्जर्वेशंस कि उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया। स्टाफ के बारे में, आपका स्टाफ है 5-6 लोग है, मैनेजर है, तो उसमें क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या नहीं किया हुआ है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये उसका ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में डालना है।
उदाहरण के तौर पे मैनेजर ने रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ, तो ही हैज टू राइट कि द मैनेजर डिड नॉट मेंटेन so and so, so and so, so and so records. Internal auditor also should observe compliances of any major repairs, internal or external leakages, usage of common premises for mobile towers, social public और प्राइवेट फंक्शंस जैसे मैरिज है, बर्थडे पार्टीज है, वॉट एवर एल्स, और उसके अगर कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ है क्या, उसको कैपिटलाइज कैसे करना बैलेंस शीट में, उसका रेजोल्यूशंस है कि नहीं, ये जनरल बॉडी का ये सारी चीज़ों को अप्रूव करने के लिए, ये सारे इंटरनल ऑडिटर के ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के दायरे में आता है. Internal auditor should be scrutinizing all books of accounts and related documents and placing observations on the same. He should be also scrutinizing the panel auditor. देखो इंटरनल ऑडिटर सोसाइटी का सिर्फ अकाउंट्स में देखता है, वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, लेकिन एक्चुअल ऑडिट करना सोसाइटी के अकाउंट्स का काम है पैनल ऑडिटर का, जो एजीएम में सिर्फ अपॉइंट होता है. पैनल ऑडिटर एसजीएम में अपॉइंट नहीं होता है. पैनल ऑडिटर एमसी अपॉइंट नहीं कर सकती. So scrutinizing panel auditors' audit report and placing observations on the same. Recovery from defaulters, checking defaulters' outstanding statements, filing procedures, counter checking expenses vis-a-vis the sanctioned or approved expenses in an MC or a GB resolution. जैसे MC ने 500 रुपये का खर्चा कर दिया, तो वो 500 रुपये का खर्चा करने के लिए मैनेजिंग कमेटी का कोई रेजोल्यूशन है या नहीं है, या अगर कोई बड़ा खर्चा किया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, तो उसका जीबी का रेजोल्यूशन है, तो काउंटर चेकिंग करना है उसे और उसका ऑब्जर्वेशन देना हुआ है. He has to also, internal auditor also has to observe on the increase and decrease in fees or charges or expenses which may relate to electricity, water, gardening, lift, STP, solar, EV, parking, SOPs, anything else. जैसे उसे एक चार्ट बनाना है कि पानी 12 महीने का पानी का इतना चार्जेस है, इस महीने में इतना क्यों हो गया, इस महीने में इतना होने के बावजूद भी टैंकर के एक्सपेंसेस क्यों हो गया, बिजली क्यों खर्चा हो गया ज़्यादा, उतना ही स्टैटिक है, उसे काउंटर चेक करना. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़े हैं क्या, 1-2%, 5% कंजम्पशन की बात अलग होती है, लेकिन अगर 100 रुपये का बिजली का बिल 200 रुपये दिखा दिया, तो ही हैज़ टू रिकॉर्ड हिज ऑब्जर्वेशंस की फॉर व्हाट डिड इट गो अप. Internal auditor should definitely do physical counter checking of the society assets with the assets property register. सोसाइटी के ऑफिस में एक कंप्यूटर है, एक प्रिंटर है, एक स्कैनर है, ये है वो है. एसेट रजिस्टर में उसका वर्णन है या नहीं है, उसका डेप्रिसिएशन फैक्टर किया हुआ ये नहीं किया हुआ बैलेंस शीट में, और दूसरा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किया है या नहीं किया हुआ है. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में अगर एसी खरीदा है, मैनेजिंग कमेटी ने बोला है वो तो एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर है, खरीद लिया, तो वो उसका प्रॉपर एसेट रजिस्टर में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ है, डेप्रिसिएशन, मैनेजिंग कमेटी रेजोल्यूशंस, वाउचर्स, डिडक्शंस, कंप्लायंसेस, वो सारा देखना है उसे. He has to also see the sinking fund, the repair fund, the reserve fund, corpus fund registers and related फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट्स, मैच्योरिटी हुई नहीं हुई, हो गई थी फिर से रिन्यू क्यों नहीं किया, जो नुकसान हुआ है उसका क्या, उसका ऑब्जर्वेशन उसको देना है. He does not have authority to direct you anything. He has only to note his observations, only his investigation points. Lastly, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेजर रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी की जितने भी रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स वगैरह वगैरह हैं, इवन द मैनेजिंग कमेटी मिनट्स, जनरल बॉडी मिनट्स, अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह वगैरह,
They can be stored in digital form. आप उसे स्कैन कर लीजिए पीडीएफ फाइल में. अगर आपके सोसाइटी का वेबसाइट है तो उसमें अपलोड करो, या डिजिटल की 5-6 कॉपी निकाल के हर ऑफिस बेरर के पास में होनी चाहिए. हैंडओवर के टाइम पे यही चीजें हैंडओवर होंगी, और ये डिजिटल फॉर्म में रखने का by following due procedures of law is possible and valid under Section 3 of the Information Technology Act, Section 65B of the Indian Evidence Act, and Section 4 and 7 of the Income Tax Act. So I will conclude my lecture today. It was important for me to share with you all these things. We will take a 2-minute break for our sponsors. I'll come back to you in 2 minutes with a Q&A of the session. Thank you. Please hold on till then. Welcome back, friends. Now we can take up questions by our friends here. Questions only relating to today's topic. आज का विषय वैसे भी था इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ड्यूटीज वगैरह. Friends who want to ask questions may please click on the hand symbol on your screen. आपके स्क्रीन में ऐसा एक हैंड सिंबल होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए. वी आर टेकिंग अप वन क्वेश्चन in sequence, one short question only per person. While asking questions, please switch on your video. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. Okay, we can start with our questions. Anybody wanting to ask any questions? Mr. Vijay Goyal, please.
One moment, sir. Okay. Good evening, sir. My today topic was excellent. My there are two questions. One is when we implemented the money part or fees part or retention part, the guideline for that, number one, as he has to spend lot of time because society whole work is too much. So what will be the comparison wise external auditor and the internal auditor? I know the meaning both sides. So as outer that external auditor is always manipulated by the MC because of whatever the reason, something maybe part of the business. So how will differentiate with this thing? Some member may agree, may not agree. Just for my knowledge sake, sir. Are you asking about the fees component of This the part internal number one, auditor fees. and panel auditor? Okay. No. Panel auditor. Final, we know. The internal auditor fees because it's a massive work or something he has to start. And how to get the internal auditor? Okay. As I mentioned, internal auditor can be an accountant Yes, or an CA yes, or a lawyer yes, or a firm of lawyers or accountants or chartered accountants or yes, accountants also. yes. But they have to be a neutral body. जैसे कंपनीज एक्ट में कैसा है कि भाई ऑडिटर को ये फला फला क्वालिफिकेशन है, उसके क्या लाइबिलिटीज है. लाइबिलिटीज तो हमारे पैनल ऑडिटर की भी है. Yes. But what we do, are we enforcing that liabilities on him? We are not doing it. Paperwork. Because we are unaware, either we do not have courage, we do not have time, we do not have money to, क्योंकि हर चीज के लिए पैसे लगने हैं उस चीज के लिए. तो अगर इंटरनल ऑडिटर ने कंप्लायंसेस नहीं किए हुए हैं एक्ट के, जैसे अगर हमें ये मालूम पड़ता है कि उसने बिजली का बिल का वाउचर चेक ही नहीं किया हुआ है लेकिन सैंक्शन कर दिया, मेरे पास 4 बिजली की बिल आ गए हैं साल के, उसका 500 रुपए का खर्चा है, मैंने इंटरनेट से पता लगा लिया या मैंने इलेक्ट्रिकल ऑफिस में चला जाके पता लगा लिया और उसने बोला कि भाई आपके सोसाइटी का टोटल बिलिंग स्ट्रक्चर 500 रुपया हुआ है पूरे साल का, ये आपको बिल्स की कॉपी दे रहा हूँ, और यू कैन आस्क देम एंड दे विल गिव यू वेरी हैप्पीली विदाउट एनी ऑब्जेक्शंस, दे विल नॉट इवन चार्ज यू आल्सो. अब वो 500 रुपया तो आपको पता चल गया कि भाई इस साल का एफवाई का 500 रुपए का बिजली का बिल है, आप उसको आप ऑडिट रिपोर्ट में चेक करोगे, यानी आपका बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो स्टेटमेंट आया एजीएम के टाइम पे, और अभी आप उसमें देखते हो कि 500 रुपए की जगह में तो 5,000 रुपए सैंक्शन, 5,000 रुपए की एंट्री आ गई है. Isn't it? Yeah. अब अगर आ गई है तो आपको जानकार है तो आप एक्शन लोगे. किस किस पे एक्शन लोगे आप? वो तो जो पैनल ऑडिटर है उसको तो लोगे क्योंकि आपने गलत ऑडिटिंग किया. फिर आप उस एमसी के ऊपर भी लोगे कि आपने तो बैलेंस शीट पे साइन किया हुआ है 5,000 रुपए वाले इलेक्ट्रिकल खर्चे के बैलेंस शीट पे, पर हकीकत में तो खर्चा 500 रुपया हुआ है. तो ये सब चीजें फ्रॉडजरी वगैरह में आ जाती है, चीटिंग में आ जाती है. So he also can be held liable. Similarly, internal auditor, even though he is not liable, he is doing it on as it is, where it is basis, but he should not be doing false reporting. जैसे अगर पैनल ऑडिटर को आप मैनिपुलेट कर लेते हो, वैसे ही आप इंटरनल ऑडिटर को भी मैनिपुलेट कर सकते हो. कई जगह पे होता है, इंडिया में ले लो या बाहर ले लो या कहीं पर भी ले लो, it is a typical and a routine thing कि everything can be manipulated everywhere. जहाँ तक फीस की बात आती है, फीस आपके बजट के ऊपर है, आपको क्या क्या काम करना है. Roughly, whatever you told. Typically, I think on an average it should be 1,200 rupees per member per year basis. Okay. Typically. Okay. And remember this, कि a small society will not be able to afford this thing. Okay. छोटी सोसाइटी में एसटीपी प्लांट नहीं है ना. छोटी सोसाइटियों में जिसके सोसाइटी समझो 4-5 माले की बिल्डिंग है, 2-4 बिल्डिंग है, वहां पे लिफ्ट ही नहीं, तो लिफ्ट का कंप्लायंस नहीं करना, तो उतना काम कम हो जाता है, उतना अकाउंट्स कम है, उतने वाउचर्स कम है, उतने बिल्डिंग्स कम है. तो क्या वो जरूरत है? इंटरनल ऑडिटर फ्री में करवाना है. सोसाइटी का किसी बुजुर्ग जानकार को ले लो. अपने सोसाइटी में कई लोग ऐसे होते हैं जो बैठे हुए, उनको ट्रेन कर दो, उनको समझा दो, उनको बोल दो,
सोसाइटी का कोई बच्चा को ले लो जो अकाउंटिंग सीख रहा है या बीकॉम स्टूडेंट है या एमबीए कर रहा है, कॉल तो करिए, लोगों को आएंगे। गोयल साहब 100%, Okay. अगर आपने इनवाइट किया, लोगों को प्रोत्साहन किया, आएंगे I और got, जरूर आएंगे। sir, I got two societies where my flats are there. One is with 120 flats, which is a tower of 20 plus, and other is a 6th floor building, but there 168 flats. But the internal audit looks like very important. सर डिपेंड्स ऑन योर बजट। Budget I and have to drink money a is चाय, okay. अगर मुझे चाय पीना है, मुझे तलब लगी है, तलब वो क्या कहते हैं हिंदी में, तलब तो उर्दू वर्ड हो गया, इच्छा। बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, प्रबल इच्छा हो रही है, क्रेविंग हो रहा है, तो मेरे पास कितने ढेर सारे ऑप्शंस है। Okay. या तो मैं चाय की टपरी में जाऊंगा, कटिंग पी के आऊंगा 5 रुपए वाली, Okay. या तो मैं छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाऊंगा जहाँ 20-30-50 रुपए की चाय पीऊंगा। Okay. और आपने जैसे बताया कि बड़ी सोसाइटी है, रिच सोसाइटी है, तो टिपिकली दे विल नॉट गो टू ए टपरी, चाय की टपरी, दे विल ऑब्वियसली गो टू एटलीस्ट ए प्रॉपर रेस्टोरेंट, a star hotel or something of that sort. Okay. Oh, yes. So this internal auditor expenditure fees depends on such factors. Okay. How much truthful you want to be. अब ये ध्यान रखिए कि अगर आपके सोसाइटी में 170 मेंबर की सोसाइटी है, तो टिपिकली ईयरली टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीस हो जाता है, सब मिला जुला के ऑन एन एवरेज। मेरा तजुर्बा ऐसा कहता है कि करीबन 2 से 5% अमाउंट फ्रॉड का होता है उसके अंदर, मेरा पर्सनल तजुर्बा कहता है। ओके ओके। तो अब 1 करोड़ के टर्नओवर में अगर आपने 2 से 5% का फ्रॉड कर दिया है, 2.5 लाख, तो वो 2.5 लाख दे दो ना उसको। इंटरनल ऑडिटर को बोल दो कि 1.5 लाख देता हूँ, पूरा इंटरनल ऑडिटर कर दे, ऑब्जर्वेशन लेकर आ जाए। एक बार ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, जनरल बॉडी के सामने जाएगा, जनरल बॉडी देखता है कि ये सारे ऑब्जर्वेशन है, तो एज ए मैनेजिंग कमेटी, क्या मैं वो 2% से 5% का फ्रॉड करूंगा या नहीं करूंगा? नोटेड, यस यस, नोटेड सर। तो एक वो रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस शुरू हो सकती है, हो सकती है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ट्रांसपेरेंसी, वी कैन डू इट, या यस, वी कैन पुट दैट थिंग्स ऑन ट्रैक। यस, थैंक यू। गोयल साहब, और कोई प्रश्न है आपका? नहीं बस, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, मिस्टर मेहुल हरिया, योर क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर। एक हमारा इंटरनल ऑडिट हो गया और उसमें रिमार्क आया कि आपके लास्ट 5 साल में जो सिंकिंग फंड कलेक्ट किया है वो गलत कलेक्ट किया है। बोले तो गलत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेके करा हुआ है। जो आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई किया और जो रिकॉर्ड पे आया वो था एक्स अमाउंट, यानी उससे डबल था। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से रिकवर हो रहा था उससे डबल आया। तो इंटरनल ऑडिटर ने रिमार्क दे दिया कि आपने जो आज दिन तक ये लास्ट 5-7 साल में जो भी कलेक्शन किया है वो सारे ये गैर कानूनी, मतलब अंडर रिकवरी हुआ है। तो उसने बोला कि उसको आप वापिस से अभी बिल रेज करके उसको कलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अब वो करने के लिए जब भी अभी फंड निकालेंगे उसका मतलब बिलिंग करते हैं, तो लोगों को लग रहा है कि भाई ये तो एडिशनल बर्डन आ रहा है, अब इसका कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है। स्टेट्यूटरी ऑडिटर ने भी उसको कंफर्म कर लिया कि ये अंडर रिकवरी हुआ है। आपकी जो सर्टिफाइड कॉस्ट है, सर्टिफाइड आर्किटेक्ट का जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसके हिसाब से ये टैली नहीं हो रहा है और 5-7 साल का जो अमाउंट हो रहा है वो सिंकिंग फंड का कहीं ना जाके 2 करोड़ रुपया हो जा रहा है। उतना कलेक्शन करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या करना चाहिए? मिस्टर मेहुल, ऐसा है कि इंटरनल ऑडिटर का परिभाषा क्या है? ही इज ओनली एन ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। ओके, क्या वो ये बोल सकता है कि क्या आपने ये गलत किया, आपको ये करना चाहिए था? ये नहीं बोल सकता, उसका काम ही नहीं है वो चीज का। आज के दिन पे मेरा वाउचर है 100 रुपए का, उसको लिखना है उधर कि 100 रुपए का वाउचर मैंने देखा। वो वाउचर 90 रुपए का होना चाहिए था या 110 रुपए का होना चाहिए था, ये काम उसका नहीं है। He is only going to be doing observations. Based on that, the GB may decide, the MC may decide to do what not. अगर MC ये बोलता है कि भाई ये फंड्स शॉर्ट कलेक्ट हुआ है लेकिन और अभी फंड नहीं कलेक्ट कर रहा है, तो सेक्शन 72 के हिसाब से जनरल बॉडी का डिसीजन सुप्रीम है।
जनरल बॉडी को ये नहीं बोल सकते हो कि आपका ये डिसीजन रॉन्ग है तो आप ये कलेक्शन मत करो। आपकी सोसाइटी है, आपको कितना खर्चा करना है नहीं करना है, खर्चा कर दिया। अगर आपने 1 करोड़ की जगह में 2 करोड़ खर्चा कर दिया तो खर्चा तो हुआ है ना 2 करोड़, कहीं से तो पैसा आया हुआ है। अब आप बोलोगे शॉर्ट है तो पैसा रिकवर करना है, जनरल बॉडी बोलती है भाई नहीं रिकवर करना है, खर्चा कर दिया ना और कहीं सोर्स से लाके, फाइन। नाउ इफ यू आर स्टिल एग्रीड अबाउट इट, then obviously you have to file before the authorities for a re-audit before the cooperative court and maybe do something about it. But typically आपने जो परिस्थिति या circumstance बताया उसमें कुछ नहीं होने वाला है। Decision of the general body is final, not managing committee but the general body. To collect or not collect, decision of the general body. सर लेकिन एक वो आर्ग्यूमेंट भी आता है कि जनरल बॉडी इज नॉट अबाउट द लॉ। तो बाय लॉ में जो लिखा गया है उसके हिसाब से कलेक्ट नहीं किया, ऐसा रिमार्क आ गया है। इंटरनल ऑडिटर ने किया और इंटरनल ऑडिटर के रिमार्क के ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया और उसको ये फैक्ट फाइंडिंग में मिला कि ये गलत हुआ है। अब उसने लिख के दिया है कि ये 13A और 13C के खिलाफ है ये जो कलेक्शन हुआ है, और आगे के ऑडिटर ने भी गलती किया है, उसने रिमार्क नहीं दिया, वो गलत हुआ है। तो हमको ये रिकलेक्ट करके इसको रिकूप कर देना है, इसको रिफिल कर देना, उसको जो जो लेवल पे रहना चाहिए था उतना कलेक्शन करना चाहिए। और जनरल बॉडी ने किसका होता है ये चीज कलेक्ट करने का? सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड वगैरह जो भी कुछ है ये किसका डिस्क्रिशन होता है? ये तो मैंडेटरी फंड्स है, एज पर बाय लॉज कंपलसरी फंड है। बायलॉस में प्रिस्क्राइब्ड, बायलॉ का जो प्रोविजंस है वो प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस होता है। एक्ट और रूल्स में सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड वगैरह वगैरह का कहीं दिया हुआ है क्या? देखा है आपने सर जी कहीं पे भी? नहीं, बाय लॉ 13A और बाय लॉ 13C है। आई एम करेक्ट, बट बायलॉ इज इट एन एक्ट और रूल्स? कंप्लायंस किसको करने को बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे? चलो आपकी बात का एक आर्गुमेंट मान भी लेते हैं कि बायलॉज का कंप्लायंसेस नहीं हुआ है। बायलॉज का कंप्लायंसेस करने के लिए फाइनल डिसीजन किसका होना चाहिए? रजिस्ट्रार ने डिसाइड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार इज एग्जैक्टली, हाँ जी एग्जैक्टली। तो आपने अभी बोला ना कि बायलॉज का कंप्लायंस नहीं किया, लेकिन जनरल बॉडी तो सुप्रीम है, लेकिन उसके ऊपर कानून है। तो उसके ऊपर कानून कौन है? अभी आपने बोला रजिस्ट्रार है जी, मैंने बोला कोऑपरेटिव कोर्ट है, हाँ जी फ्रॉड हुआ है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वगैरह वगैरह। जी। पर आप कानून नहीं बना सकते। वो कानून के लिए अपर पोर्शन में जाना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा आपको। हाँ जी, यानी अभी 83 भी लग गया उसके लिए, और 83 में भी कंफर्म हो गया। 83 का इंक्वायरी बैठा, वो स्पेशल रिपोर्ट सबमिट किया ऑडिटर ने, और उसके ऊपर 83 का इंक्वायरी हुआ। 83 इंक्वायरी ने भी कंफर्म कर लिया। अब जाके फंड्स शॉर्ट कलेक्शन हाँ is not an offense. ओके Collected funds, if used or misappropriated हाँ जी or spent without relevant documents, TDS, GST, vouchers, supporting वगैरह वगैरह, then that is an offense. You getting my point, sir? ओके। गलत काम किया उसको वो ऑफेंस है, काम नहीं किया या कम काम किया वो ऑफेंस नहीं है सर। यानी बाय लॉ को फॉलो नहीं करे और सिंकिंग फंड नहीं भी कलेक्ट करे तो सोसाइटी ऐसा डिसाइड कर सकता है कि बाय लॉ में लिखा है लेकिन हम लोग सिंकिंग फंड कलेक्ट नहीं करेंगे, स्टिल इट विल बी वैलिड। सो ऐसा There is no punishment as yet, as of today there is no such punishment for the same. There is no punishment. Even if you go to the cooperative court and say they haven't done this thing, the cooperative court will say, tell you one simple thing: call a general body meeting, GB meeting, AGM or SGM, decide and finalize that same thing. Now if the GB again says no, fine, we are going to continue maintain status quo, जैसी है परिस्थिति वैसे ही हम बना के रखेंगे, तो कोऑपरेटिव कोर्ट आपको ये ऑर्डर नहीं दे सकता है कि आपने शॉर्ट फंड कलेक्ट किया तो अभी आप कलेक्शन करो, वो नहीं बोल सकता है। आपका री ऑडिट भी नहीं बोल सकता, आपका 83 ऑफिसर भी नहीं बोल सकता, आपका 88 वाला भी नहीं बोल सकता, अनलेस एंड अनटिल यू से कि पैसा खाया। यहाँ पे पैसा नहीं खाया, आपने बोल रहे शॉर्ट कलेक्शन किया है। शॉर्ट कलेक्शन किया तो पैसा भी नहीं खा सकता है कोई।
करेक्ट? तो सिंकिंग फंड जो इमरजेंसी फंड जो बोला जाता है कि कभी सोसाइटी को कुछ इमरजेंसी आ गया, उसके स्ट्रक्चर में कोई आ गया, तभी कोई फंड नहीं रहेगा और वो टाइम पे सब लोग पैसा निकालने को जाएंगे, समझ लो कमिटी, उसके लिए सिंकिंग फंड बनाया गया। तो उसको कलेक्शन नहीं करे, अभी जिसको पैसा ही बचाना है, तो सब लोग बोलेंगे तो फिर हम लोग कुछ कंट्रीब्यूशन हम करते ही नहीं है। जब भी बिल्डिंग गिरने वाला है या फिर कुछ होता है इमरजेंसी, दैट टाइम वी विल कलेक्ट, दैट इज ओके। सो उस हिसाब से रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि भाई हम लोग Mr. Mehul, you tell me that you haven't complied with the law. What is the punishment for it? Is any punishment prescribed for short collection in the act or rules anywhere? नहीं, सिंकिंग फंड यूज तो नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन है। तो जो शॉर्ट कलेक्शन है उसका मतलब है कि आपने उसको वो पैसा आपने और कहीं पे यूज कर दिया, क्योंकि आपको कलेक्ट एक्स करना था, आपने एक्स माइनस समथिंग किया, तो जो पैसा आपने अंडर कलेक्ट किया और खर्चे में वापस डाला, तो दैट इज ऑलमोस्ट सिंकिंग फंड यूटिलाइज्ड। Where is the misappropriation of funds? पैसा खाया पिया किधर? चीटिंग फ्रॉड किधर हुआ? नहीं, फंड क्रिएट नहीं किया ना, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। वो पॉइंट था कि यानी इमरजेंसी फंड नहीं रहेगा सोसाइटी के पास। नहीं रहे इमरजेंसी फंड, कोई बात नहीं। अभी जैसे कल उठ के आपकी 500 फीट की कंपाउंड की वॉल है, आपके नई सोसाइटी है, सिंकिंग फंड आपके पास खाली 2-5 लाख रुपया है, और वो जो दीवार है वो अर्थक्वेक के से या पानी के बहाव से या बारिश से या इससे उससे गिर गई और उसका खर्चा 1 करोड़ का हो गया। अभी क्या करेंगे आप बताइए मुझे? जी, कलेक्ट तो जीबी से ही करना है ना, जी, कलेक्ट तो जीबी का डिसीजन से ही करना है। आपने वो कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करने के बाद में ये बोला कि मैंने कलेक्ट 1 करोड़ किया है, मैंने 1 करोड़ खर्चा भी कर दिया, पर एक्चुअल अकाउंटिंग में उसका स्टेटमेंट में सपोर्टिंग्स नहीं है, वाउचर्स नहीं है, बिल्स नहीं है, करस्पॉन्डिंग टीडीएस और जीएसटी नहीं है, तो देन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रॉड। आप जो अपने 83 सेक्शन का बोला, वो सेक्शन इस पर्टिकुलर चीज के दायरे के बाहर है। ही कैन गिव यू ओनली ऑब्जर्वेशन कि सर ठीक है भाई 1 करोड़ कलेक्ट करना था, नहीं किया, तो अभी आप 50 लाख ही कलेक्ट किया हुआ है। डीआर कैन नॉट टेल यू कि आप कलेक्ट करो, डीआर कैन नॉट टेल यू कि आप सर्विस चार्जेस बढ़ाओ, डीआर कैन नॉट टेल यू कि आप लीगल चार्जेस इतना पैसा दो। उसका काम अधिकार क्षेत्र के बाहर है वो सर। वो डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल बॉडी का है। पॉलिसी मेकिंग, इंटरनल पॉलिसी मेकिंग, इंटरनल फाइनेंस जनरेटिंग, internal finance spending, legitimate, all legitimate. Authority is only and only with the GB and no authority. If you have made a mischief, if you have collected but overspent it without supporting, then there is this provision of prosecution by registrar or court or a criminal court or other courts, but not for short funds. Okay, thank you, Mr. Mehul, for joining in. Any other question by anybody else? और किसी को कोई प्रश्न पूछना है प्लीज? कोई भी प्रश्न, छोटा मोटा कुछ भी है, अपने डाउट्स क्लैरिफाई करिए। मिस्टर संजय भाई प्लीज। Good evening, sir. Good evening. In the internal auditor's report, he has mentioned that the income tax filing, the society has done under business as a business entity, and they've claimed business loss and taken refund, though the society has a antenna, this tower installed in the building, but it is still not as a business. It is not running a business. So the wrong filing and claiming a refund from the income tax, how does this affect the society as such implications on the society? You have installed a mobile tower atop your building. Yes. You are getting, let us say, 100 rupees as annual rent. That annual rent is not equivalent to income generated
from members' funds. Am I correct, sir? Right. So it is a revenue generated from third party, Yes. correct? So if there is an advertising board या मोबाइल टावर या आपके सोसाइटी में बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप उसे शादी ब्याह के लिए देते हो, बर्थडे के लिए देते हो, फंक्शन के लिए देते हो, उसके पास से जो इनकम आता है वो तो थर्ड पार्टी इनकम हो गया, उस पर तो आपको पूरा टैक्स देना है. लेकिन अगर आप आईटी को मिस रिप्रेजेंट करते हो कि दिस इन्वॉल्व्स, दिस मीन्स इनकम फ्रॉम द मेंबर्स इटसेल्फ, देन इट इज अ फॉल्स थिंग. इनकम फ्रॉम द मेंबर्स इज व्हाट? बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा हुआ है. वो सिंकिंग फंड लिखा है, रिपेयर फंड लिखा है, रिजर्व फंड है, मेंबरशिप ट्रांसफर फीस है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है, राइट साइड में आपका इनकम दिखाई देंगे आपको, तो वहां पे आपको कुछ कुछ फिगर्स दिखाई देंगे. वो आपका कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम members. So that Right. contribution from members is exempt from tax. आपका Right. कोई पैसा आया हुआ है, आपने बैंक में रखा हुआ है, वो पैसा मेंबर का ही है और वो कोऑपरेटिव बैंक में ही रखा हुआ है. इट इज यूज्ड फॉर द कोऑपरेटिव मूवमेंट. आज के दिन पे दैट आई सपोज इज गोइंग टू बी सून रिवाइज्ड. आज के दिन पे वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है. तो नाउ यू कैन नॉट से कि इनकम फ्रॉम मोबाइल टावर, एडवर्टाइजमेंट्स, ग्राउंड रेंट, ये वो वगैरह जनरेटेड फ्रॉम थर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड फॉर रिफंड. दैट इज अ फॉल्स डिक्लेरेशन. The liability of the society, because it is society is a corporate body under Section 37 MCS Act, you will be liable for penalty also and prosecution also, plus interest. You need to take a written opinion from a proper tax consultant by showing all the documents, and he will literally tell you the same thing which I have just described to you. Right. So, because the managing committee has changed now, new managing committee has come and we have found that. So, we reported to the registrar the line of action. The fraud committed against another legal or let us say statutory body is of no jurisdiction of the registrar or of the cooperative court, unless and until you say that money was fraudulently used or misappropriated. So if you want to initiate prosecution Yes. as an aggrieved or let us say prudent member, सोसाइटी का पैन कार्ड है, आईटी डिपार्टमेंट को कॉस्मेटिकली बैलेंस शीट वगैरह वगैरह का डॉक्यूमेंट दे के आस्क देम ओनली फॉर इन्वेस्टिगेटिंग, नथिंग एल्स. दे विल डू द नीडफुल. Okay. Because just continuation of this question, many of the members that discussed the matter, they said that because a letter was written to the ex-managing committee, they did not even receive the letter, and means they have not receiving the letter, so there is no reply. So they said that let's file it through the registrar, intimate them, and then try to get a response. If they don't give a response, their concern is that liability later on for the penalty that will come from the income tax should not be put on the members. It has to go back to the people who have fraudulently represented or Yes, that misrepresented. can be done. Now, irrespective of who is on the chair, Yes. irrespective of the time period that may have elapsed, let us say 6 saal, 6 years have elapsed. There are 4 managing committee changed during that period. But the managing committee who was in charge, who was in the chair at the given point of time will be held liable. और वो जो अटैचमेंट है उसकी प्रोसीडिंग आपको जो सेक्शन 83, 88 का कार्यवाही करवा के उस पर्टिकुलर फ्लैट के अगेंस्ट में आप रिकवरी करवा सकते हो, इवन इफ दैट फ्लैट ओनर्स हैव चेंज्ड.
So this will go through the registrar. Then we'll have to inform the registrar and then accordingly do. तो registrar cannot do anything about it, sir. You have to inform the tax authorities ऐसा ऐसा हुआ है. And the tax authorities, when they say कि yes, I am going to, you have to pay 100 rupees as penalty, this and that, you pay it, the society pays it, of course, and the society initiates recovery proceedings. So that then MC member who is responsible for all this negligence. But remember that if this thing was resolved in a GB meeting at any given point of time, कि नहीं ऐसा हम करेंगे, हम ये क्लेम कर लेंगे, वो क्लेम कर लेंगे, वो रेजोल्यूशन अगर किसी भी जीबी मीटिंग में रिकॉर्डेड है, then the society in its entirety will be liable and not the managing committee. You got to check all those both resolutions as well. वो तो चेक किए, there is nothing like that. वो तो इन्फॉर्म ही नहीं किया लोगों को, and a lot of things were hidden from the members, and even the documents were not given when people had asked. So the line Anyway, of action thank you, is Mr. clear. Sanjay bhai. Thank you. Anybody else has any questions? Yes, please go ahead. Mr. Shashank, I think. Hello. Yes, please go ahead. Yeah, good evening, sir. My question was sir, about the observation authority of Sir, your voice is breaking heavily. Shashank साहब, आपकी अच्छा. आवाज ब्रेक हो रही The है. child is disconnected Bluetooth one day. वीडियो बंद कर दीजिए, शायद बैंडविड्थ मिल जाए आपको. Hello. हाँ, go Is ahead. it clear now? Yes, please. Yeah, my question was you just talked about the powers of internal auditor, where he can only Yes. observe and investigate. Can you Yes. please? Are you still there? Please, I can't hear you. Hello. Mr. Shashank, I can't hear you. Please I come just back wanted after to a few ask- minutes and Yeah, take the next hello. question. I wanted to ask whether the observations and the points or the discrepancies pointed out by the internal auditor are Yes. mandatory to be complied. It is Whether a he can direct. it is a discretion. The observation are to be placed before the GB, and then the GB takes a decision as to what is to be done. It is an observation. क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, वो उसे सिर्फ बताना है. ये मुझे ये सब पूछना था कि इंटरनल ऑडिटर्स के जो डिस्क्रिपेंसीज या जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं whether it has to be complied mandatorily. That's what I said. कि the decision to comply or not comply is vested only with the general body. When it reads that particular auditor's report, internal auditor's report, observations, discuss, and then say what is to be done, what is not to be done. Okay. Last question is by Mr. Francis. Mr. Francis, please. Yes, sir. Sir, this is only want to know clarification doubt regarding rectification report when the MCs distributed the agenda notices and all. In the GB, it has to be discussed, this rectification report and passed because it's never given in GB agenda. An agenda, there's a lot of disturbance from behind, please. Any agenda which is there in the notice has to be discussed and decided and minuted accordingly. Okay, anybody else has any questions, please, before we conclude for today?
और किसी का कोई प्रश्न है प्लीज? ओके. So now with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends Thank you. Thank you. a healthy and peaceful life Thank you, sir. forward. Thank you everybody. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Hemant ji. Thank you so much. I appreciate it. Thank you.